નમસ્કાર, સનસનીખેજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા શહેરની એમએસ યુનિવર્સિટીમાં ન્યૂ ઇન્ડિયા ફોર યંગ ઇન્ડિયા અંતર્ગત કેન્દ્રીય સૂચના રાજ્યમંત્રી શ્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરની ઉપસ્થિતિમાં કાર્યક્રમ યોજાયો। વડોદરા શહેરની એમએસ યુનિવર્સિટી ખાતે સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ સાધતા કેન્દ્રીય કૌશલ વિકાસ અને સૂચના પ્રૌદ્યોગિકી રાજ્યમંત્રી શ્રી રાજીવ ચંદ્રશેખર, કેન્દ્રીય કૌશલ વિકાસ અને સૂચના પ્રૌદ્યોગિકી રાજ્યમંત્રી શ્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરે જણાવ્યું કે આગામી એક જ વર્ષમાં ભારતની ડિજિટલ ઇકોનોમી $1 ટ્રિલિયન આંબી જશે અને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના સંકલ્પ એવા ભારતને $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવાના સંકલ્પમાં ડિજિટલ ઇકોનોમીનો હિસ્સો 25% જેટલો હશે। આગામી 3 વર્ષના સમયમાં આ ડિજિટલ ઇકોનોમીમાં 10 કરોડ યુવાનોને નોકરી મળશે તેવું પણ આકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે। કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી શ્રી રાજીવ ચંદ્રશેખર આજે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ખાતે સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા વિવિધ સ્ટાર્ટઅપની પ્રદર્શનીમાં પહોંચી તેની વિશે ઝીણવટભરી માહિતી મેળવી હતી અને બાદમાં આ ઇનોવેટર્સ સાથે સંવાદ સાધ્યો હતો। તેમણે જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં વિવિધ ક્ષેત્રમાં સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવાની વિપુલ તકો રહેલી છે। સેમિકન્ડક્ટર, સ્પેસ, મટીરિયલ્સ, ડ્રોન, AI, રિન્યુએબલ એનર્જી અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કેટેગરીમાં સ્ટાર્ટઅપની વ્યાપક તકો રહેલી છે। દેશ પણ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની આગવી દીર્ઘદ્રષ્ટિથી સ્ટાર્ટઅપ ક્ષેત્રમાં મજબૂતાઈથી આગળ વધી રહ્યો છે। છેલ્લા 2 વર્ષ દરમિયાન દેશમાં 100 યુનિકોર્ન એવો છે કે જેમની વેલ્યુ 80,000 કરોડ રૂપિયા જેટલી થવા જાય છે। આ બાબત જ દર્શાવે છે કે ભારત સ્ટાર્ટઅપ થકી અર્થતંત્રમાં ઉભરી રહ્યું છે। ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં ભારત વિશ્વમાં અગ્રીમ હરોળમાં છે એમ કહેતા મંત્રીશ્રીએ ઉમેર્યું કે આગામી 10 વર્ષમાં ભારત વિશ્વની ટેકનોલોજીક જરૂરિયાતોને સંતોષશે એ પ્રકારે કામ થઈ રહ્યું છે। દેશની યુવા શક્તિ વિશ્વની માત આપી રહી છે અને દુનિયાની સારી કંપનીઓને પણ ભારતીય યુવાનો હંફાવી રહ્યા છે। ઇન્ટરનેટ સલામત અને વિશ્વાસપાત્ર, જવાબદાર અને તમામ નાગરિકો માટે સરળ ઉપલબ્ધ હોવાની આવશ્યકતા ઉપર ભાર મૂકતા શ્રી ચંદ્રશેખરે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લીગલ ફ્રેમવર્ક તૈયાર કરીને આ ક્ષેત્રને વધુ જવાબદેહી બનાવવામાં આવ્યું છે। સાયબર સિક્યોરિટી માટે સરકાર સતત પગલાં લઈ રહી છે। શ્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરે વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ સાધતા જણાવ્યું કે મેક ઇન ઇન્ડિયા, સ્કિલ ઇન્ડિયા અને ડિજિટલ ઇન્ડિયાના પાયા ઉપર નવા ભારતનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે અને દેશ આત્મનિર્ભરતા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે। આવનાર દાયકો ભારતનો છે તેમ જણાવતા તેમણે ઉમેર્યું કે આગામી 10 વર્ષ ન્યૂ ઇન્ડિયા ફોર યંગ ઇન્ડિયાના સૂત્રને સરકાર યુવા શક્તિ સાથે મળીને સાકાર કરશે। ભારતમાં ટેકનોલોજી અને કૌશલ્ય વિકાસ ક્ષેત્રમાં રહેલી વિશાળ તકોમાં દેશમાં ટેકેડ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી સર્જાશે। ઉચ્ચ શિક્ષણ રાજ્યમંત્રી શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોરે જણાવ્યું કે ગુજરાત છેલ્લા 2 વર્ષમાં સમગ્ર દેશમાં સ્ટાર્ટઅપ પરફોર્મન્સ રેન્કિંગમાં નંબર 1 ઉપર રહ્યું છે। ભારત સરકાર દ્વારા ગુજરાતને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માટે બેસ્ટ પરફોર્મન્સ સ્ટેટનો એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો છે। આજનો યુવાન સમાજને મદદરૂપ થવા સ્ટાર્ટઅપ ક્ષેત્રમાં નવા ઇનોવેશન કરી રહ્યો છે જે ભારત અને ગુજરાત માટે ગૌરવની વાત છે। આ પ્રસંગે ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર શ્રી એમ નાગરાજન, ટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામક શ્રી GT પંડ્યા, રજિસ્ટ્રાર શ્રી ચુડાસમા, શિક્ષણ જગતના અગ્રણીઓ, સ્ટાર્ટઅપ સાથે સંકળાયેલા મહાનુભાવો તેમજ મોટી સંખ્યામાં છાત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। एनर्जी को लेके बहुत महामारी होगी। आज प्रधानमंत्री को बोलना भी पड़ा कि पुअर नीड्स सेम एनर्जी राइट्स एक्सेस एज रीच। तो सर जो कार्बन एमिशन की बात है, काफ़ी आरोप लगते रहते हैं जो अपकमिंग जो कंट्रीज हैं उन पर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर आप स्टार्टअप्स देखते हैं तो ऐसा कोई स्टार्टअप्स है जो इन रिन्यूएबल एनर्जी में ऑप्शन बन के उभरे, ऐसा कोई स्टार्टअप कोई बहुत। मैंने आज सुबह किसी ने मुझसे पूछा कि गुजरात के स्टार्टअप्स मेरा क्या असेसमेंट, और मैं मानता हूं कि गुजरात से ये MS यूनिवर्सिटी से आए या गणपत से आए या निर्मा से आए या गुजरात यूनिवर्सिटी से आए, 2-3 कैटेगरीज मुझे साफ
नज़र आता है, मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप कॉम्पिटेंसी है, मटीरियल्स एंड केमिकल्स, दूसरा ड्रोन्स, तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, चौथा सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये ऐसे नए नए जो कैटेगरीज और अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रहे हैं। अब आई फॉरगॉट स्पेस, ये भी एक कैटेगरी है यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के सक्सेस में। तो आपने सही कहा, रिन्यूएबल सॉल्यूशंस मैंने देखा भी है। पिछले ट्रिप में हमने काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्शन भी किया है जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इस स्पेस में। तो आपके प्रश्न का आंसर है हाँ, यस, यू आर राइट। क्या जो अभी जो फॉसिल है उसका एनर्जी है उसका क्या देखिए, ये दो इश्यूज हैं जो आप प्रधानमंत्री जी को कोट कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि दुनिया का एक हिपोक्रेसी जो है ना, जो यूरोप इस रशिया यूक्रेन वॉर में, जो यूरोप, हमारे मंत्री जयशंकर जी ने कहा भी है कि वो तो गैस ले रहे हैं रशिया से और उनका गैस लेने में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत ने जब थोड़ा बहुत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रशिया से लिया है, उन्होंने थोड़ा ड्रामा किया। उसमें यही है, जयशंकर जी ने भी कहा कि इसमें डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होना चाहिए। हमारे नागरिक, हमारे देश के सिटीजन्स को भी एनर्जी सिक्योरिटी उसी इम्पोर्टेंस में है जैसे जर्मनी के सिटीजन्स हो या यूके के सिटीजन। ये सोचना कि हमारे नागरिक सैक्रिफाइस कर लेंगे लेकिन आप गैस खरीदते रहेंगे, ये इसमें थोड़ा है कि हिपोक्रेसी है। मुझे लगता है उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा। लेकिन एक बात सही, बहुत इस रशिया यूक्रेन के बाद एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमें हाइड्रोकार्बन डिपेंडेंसी कम करना चाहिए एज अ कंट्री। हमारा हाइड्रोकार्बन फुटप्रिंट कम होना चाहिए, हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेट करना चाहिए। और इसमें एक और, मैं आपको एक और याद दिला दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने इस दूरदर्शिता दिखाया था 2016 में, जब उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की। तो कोविड के बाद समझ सकते हैं कि उनका डिजिटल इंडिया का जो 2015 का इनिशिएटिव था, उससे आज कितना लाभ हो रहा है देश को। उनका ISA और सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस से देश को कितना लाभ हो रहा है आज। तो ये जो मल्टी ईयर विजनरी गवर्नेंस का बेनिफिट 2-3-4 साल के बाद महसूस होने का जो एक्सपीरियंस हम आज 2022 में देख रहे हैं, उनका क्रेडिट तो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और उनका डिसीजन मेकिंग को देना चाहिए। आपने शासन सुधार और इंटरनेट की आज़ादी के लिए काफ़ी काम किया। MS यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे ILG नाम का एक सेंटर है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इंटरनेशनल लीडरशिप इन गवर्नेंस। किस प्रकार के सुशासन में और आप सुधार की गुंजाइश देखते हैं? और इंटरनेट आज़ादी लेकर सवाल ये है कि कोई भी कुछ भी लिख देता है, चाहे वो शरद पवार के खिलाफ कोई लड़की लिख देती है या जुबेर कुछ लिख देता है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या इसके लिए कोई होलिस्टिक फ्रेमवर्क होना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें, आपने दो प्रश्न पूछे हैं। एक तो टेक्नोलॉजी को सरकार में कैसे यूज़ किया जाए और ज़्यादा कैसे यूज़ किया जाए जिससे सिटीजन्स को बेनिफिट मिले। आपने देखा है कि, और मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा अगर किसी ने पूछा ये फायर चैट में, कि पहले 65 साल में हमारा जो एक छवि था डेमोक्रेसी कि हमारा डेमोक्रेसी इज डिसफंक्शनल। एक बहुत साल पहले राजीव गांधी जी 1985 में उन्होंने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया था कि हर 100 पैसे जो दिल्ली से निकलता है बेनिफिशियरी के लिए, उससे 15 पैसे वहाँ पहुँचते हैं, 85 पैसे बीच में कोई खा लेता है। ये था एक हमारे डेमोक्रेसी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन कि हमारा डेमोक्रेसी और हमारे गवर्नेंस में लीकेज और करप्शन तो एक नॉर्मल इशू है, हमको मान के चलना पड़ेगा कि 15 पैसा ही पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 के बाद थ्रू JDY, थ्रू DBT, थ्रू टेक्नोलॉजी आज पैसा निकलता है दिल्ली डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी। उनके फोन में आता है बीप बीप बीप, ना कोई बीच में लीकेज, ना कोई मिडिलमैन, ना कोई 100 पैसे का कम होना।
मैं रिसेंटली गया राजमुंड्री में, पीएम किसान निधि का रिलीज हो रहा था। स्क्रीन में प्रधानमंत्री दिल्ली में, मैं हॉल में 2000 किसानों के साथ, ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना खुशी होता है। रूम में वहां पे बटन प्रेस और यहाँ पे 2000 फोन में बीप 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 बीप, और हाँ 2400 रुपीज रिसीव। ये जो ताकत टेक्नोलॉजी का, हमारे डेमोक्रेसी के नैरेटिव को जो 65 साल से लोग कहते थे, बाहर के लोग भी, कि यार यहाँ पे तो लीकेज होता ही है, उसको बदल दिया। ये है पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा आपने कहा इंटरनेट। इंटरनेट ये ऐसा जगह नहीं है जहां पर लॉज नहीं। ये मान के चलना कि जो मैं रेगुलर ऑफलाइन लाइफ में नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ, जो वहां पर इलीगल है, इंटरनेट में लीगल है, ये मान के चलना एक बहुत ही गलतफहमी है। हमारा सरकार का रवैया टुवर्ड्स इंटरनेट इज द सेम एज नॉर्मल ऑफलाइन। हमारा सरकार का बड़ा स्पष्ट फिलॉसफी है टुवर्ड इंटरनेट। इंटरनेट हमेशा ओपन हो, यानी कि हर व्यक्ति को इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट शुड बी सेफ एंड ट्रस्टेड। सेफ्टी एंड ट्रस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और चौथा, इंटरनेट इज अकाउंटेबल। तो अगर आपने कुछ कन्वेंशनल रेगुलर लॉ को वायलेट कर दिया है साइबर स्पेस पे, वहां पे कोई इम्यूनिटी नहीं है। और अगर आप पर कोई चार्जशीट होता है, ए जो भी आप नाम ले रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर्सन है या पर्सन भी, तो जाके कोर्ट में एजिटेट कर सकते हैं। अगर गलती से चार्जशीट हुआ है, गलती से एफआईआर हुआ है इन द फॉर एक्शन, लेकिन एजिटेटेड उनको। यूनिवर्सिटी में पढ़े, आज आप वडोदरा में है। वडोदरा की पहचान एक शैक्षणिक नगरी की है, तो पहला आप कैसे, और वो भी एमएसयू में जब आप आए तो क्या कहना चाहिए? देखिए, एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सालों के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। आई थिंक 30 साल पहले या 25 साल पहले एक बार एमएस यूनिवर्सिटी में मेरा आना हुआ है। ये बहुत सालों के बाद मैं आ रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं, काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। और मैं इसीलिए आया हूँ कि ये जो एक नया मूवमेंट चला है देश में, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स का, और ये जो युवा शक्ति से के साथ जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और ये जो स्टार्टअप्स हैं अलग अलग प्रदेश से आ रहे हैं, अलग अलग शहर से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है, एक विश्वास है और एक गोल भी है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में नए यूनिकॉर्न्स, नए स्टार्टअप्स और ये जो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेस में, सेमीकंडक्टर में, टेक्नोलॉजी में, एआई में, एमएस यूनिवर्सिटी और अलग अलग गुजरात के अलग अलग यूनिवर्सिटी से नए यूनिकॉर्न्स, नए स्टार्टअप्स बनेंगे। आप जानते हैं कि बहुत सालों से हमारे देश में टेक्नोलॉजी के जो इनोवेशन आईआईटीज़ और वगैरह कॉलेजेस में कॉन्सेंट्रेटेड थे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक विश्वास है कि इस डिजिटल अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और वडोदरा के युवा भी, महसाना का युवा भी, सूरत के युवा भी, आनंद के युवा भी इस तेज़ रफ्तार से जो आगे बढ़ने वाले डिजिटल इकोनॉमी है उनका भी भागीदारी हो, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, वो भी सक्सेसफुल हो। प्रधानमंत्री ने कल जर्मनी में कहा कि जब मैं 2015 में आया था तो स्टार्टअप में भारत कहीं नहीं था, लेकिन अब तीसरा बड़ा इकोसिस्टम भारत है। आप खुद स्टार्टअप चलाते रहे हैं, खुद एंटरप्रेन्योर रहे, कैसे देखते हैं भविष्य कैसा है भारत का? मेरा इसका एक संक्षिप्त आंसर है कि इंडिया का जो सिचुएशन आज है, जो दुनिया भर के नेता, दुनिया भर के देश इंडिया को एक रिस्पेक्ट और ऑ से देखते हैं, उसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे युवा शक्ति ने कर दिखाया है दुनिया के सामने कि वो वर्ल्ड बीटिंग टेक्नोलॉजी जहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, वर्ल्ड बीटिंग कंपनीज खड़ा कर सकते हैं। और जो पिछले 2 साल में 100 यूनिकॉर्न्स देश में बने, वो कोई एकेडमिक आइडियाज़ नहीं थे। 100 यूनिकॉर्न का मतलब है 80,000 करोड़ का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हमारे युवा
स्टार्टअप्स ने देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि अगस्त 15 2021 को जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को बना रहे थे और मनाने की घोषणा किया था कि अगले 10 साल जो दुनिया के टेक्नोलॉजी नीड्स के लिए भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर बनेगा,